इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट किया जाता है. देयर आर फोर वेज इन विच you can create your data frame in Python pandas library, and with the help of this data frame you can analyze your use amount of data in a tabular form. रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम. So let's create a simple data frame in which I am going to assign the values to the students field, marks field and sports fields. एक सिंपल सा डेटा फ्रेम हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं. We are going to discuss about first way which is creating a data frame object from a 2D dictionary. So इस तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि first of all you need to import pandas module in this program, and after this assign some dictionary values. With the help of dictionary values you can create a data frame, and to assign some values to your dictionary you have to take some data like students, marks and sports. It is your choice, and the field name also given in your questions. To set the values for the marks field like this, if you want to set the numeric value for your data frame, then you don't need to assign a single quotation value. So simply put the value within the square bracket, and after this I will take one more field, name दे देते हैं उसका sports. assign some values. sports की value भी हमने set कर दी square bracket में. each value will be separated with comma and within single quotation mark. I'll assign some values to the students, marks and sports fields, and after that रन करवा के देख लीजिए आपकी डिक्शनरी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं या नहीं, किस तरीके से डिक्ट 1 को हमने प्रिंट करवाया. लेट्स रन दिस कोड एंड इट विल गिव सम एरर दैट डिक्शनरी डिक्ट 1 इज़ नॉट डिफाइंड. सो जो नेम ऑफ द वेरिएबल है वो आपको बहुत ही ध्यान से प्रिंट करवाना है. यू कैन सी दैट हमने यहाँ DICT1 नहीं लिखा, हमने DIC1 लिखा. दैट इज़ नॉट डिफाइंड. तो वेरिएबल नेम हमें dict1 सेट करना है एंड ट्राई टू रन दिस कोड और चेक. अगर कोई भी एरर आ जाती है तो इस तरीके से आपको पूरा जो अपना कोड है वो चेक कर लेना है एंड ट्राई टू रन एंड रीस्टार्ट द कर्नल. नाउ यू कैन सी द आउटपुट इज़ करेक्ट. dict1 लिखते ही हमारा आउटपुट जो है शो हो गया. किस तरीके से डिक्शनरी वैल्यूज़ आ रही हैं यू कैन सी. एंड लेट्स क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस डिक्शनरी dict1. call data frame function of pandas library with the pandas PD aliasing name जो आपने सेट किया है उसके साथ में pandas का data frame function यहाँ कॉल कर लीजिए. then pass this dictionary to this data frame so that this data frame can be created with the help of these values of this dictionary, student, marks and sports values. Let's print this data frame object like this, df1, and you can see that our data frame has been created like this. Students, marks and sports will be has been set as a column in this data frame, and default index value is also generated for this data frame. default index value आप देख सकते हैं 0 से index जो हमारी यहाँ जनरेट हो गई है 0 to n-1. ये डिफ़ॉल्ट है. इट इज़ योर चॉइस. आप यहाँ पे अपनी इंडेक्स वैल्यू भी सेट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो सेट द इंडेक्स वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इन योर डेटा फ्रेम with the help of index parameter. चलिए करके सेट करते हैं index values. These are the index values that is generated by default. Now I will copy this code and assign some index value to this data frame. किस तरीके से आप index generate करवा सकते हो अपनी choice की. With the help of index parameter you can do this. आइए इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और इसी फंक्शन में डेटा फ्रेम फंक्शन में हम इंडेक्स पैरामीटर यूज़ करेंगे टू सेट द इंडेक्स
for our data frame. Length of your index must remain same as the number of records. आप जितने रिकॉर्ड्स आपके डेटा फ्रेम में हैं, नंबर ऑफ इंडेक्स वैल्यूज़ की लेंथ जो है आपके सेम रहनी चाहिए. यू कैन सी देर आर 5 रोज. नाउ आप देख सकते हैं हमारी इंडेक्स वैल्यूज़ जो है सेट हो चुकी है. नाउ इंडेक्स विल बी set from 0 1 2 3 to 1st 2nd 4th as we have set this. तो इस तरीके से आप इंडेक्स भी सेट कर सकते हैं. ये आप देख सकते हैं ये इंडेक्स वैल्यू हमने इस तरीके से सेट कर दी है 1st 2nd 3rd 4th 5th. Now we are going to discuss second way to create a data frame with the help of 2D dictionary having a value as a dictionary object. जैसे कि हम नेस्टेड ऑफ डिक्शनरीज भी बोल सकते हैं. लेट्स क्रिएट सम डिक्शनरी वैल्यूज़ टू ईयर 2015 2016 एंड ईयर 2017. कुछ इस तरीके से 3 ईयर्स हमारे पास में है. एंड सेट द की वैल्यू पेयर फॉर ईच एंड एवरी डिक्शनरी वैल्यूज़ एंड असाइन दीज वैल्यूज़ अगेन टू अ डिक्शनरी. एक डिक्शनरी के वैल्यू को फिर से किसी एक और डिक्शनरी में असाइन करवाना और उसका यूज़ करके आप डेटा फ्रेम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो. यहाँ पे देर आर 4 की वैल्यूज़ क्वांटिटी 1 Q1 Q2 and Q3 and Q4 and assign some values for each key. and let's create some another dictionary जिसका हमने यहाँ नेम दिया 2016 and set the value for this dictionary. Key values same Q1 Q2 and Q quantity 4 and set the change the values for these and just like this. Quantity value will be set here 46,100. quantity 3 change कर दीजिए 57 से and quantity 4 जो हमारे हो गया 59,000. अब इसी तरीके से एक और ईयर ले लीजिए एज अ डिक्शनरी 2017 ले लेते हैं. तो आप देखेंगे कि इन्हीं डिक्शनरी वैल्यूज़ का यूज़ करके किस तरीके से वन अनदर डिक्शनरी क्रिएट होती है. तो इसको रन करवा लेते हैं and create a new dictionary and assign these values. these dictionary जो above dictionaries आपको शो हो रही है 2015 16 और 17 ईयर वाली. assign these dictionary as a value to this dictionary. as a value हम जो डिक्शनरी क्रिएट कर चुके हैं उन्हें इसमें असाइन करवा देंगे. 2015 लिया एज अ वैल्यू, हमने ईयर 2015 वाली डिक्शनरी को असाइन करवा दिया. तो इसीलिए इस टॉपिक का नेम है कि 2D डिक्शनरी हैविंग अ वैल्यू, जिसके पास वैल्यू है विच इज़ ऑलरेडी अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट. एक डिक्शनरी जिसमें जो वैल्यू सेट कर रहे हैं वो पहले से ही क्या है, एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है जो कि ऑलरेडी क्रिएट किया जा चुका है. तो इस तरीके से एक डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी को एज अ वैल्यू सेट कर दिया. और अब हम इस डिसेल्स नाम की डिक्शनरी का यूज़ करके पहले तो इसको प्रिंट करवा लेते हैं, इसका आउटपुट किस तरीके से शो होता है. डिसेल्स को प्रिंट करवा के देखते हैं. डेटा फ्रेम 2 हमने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड कॉल दिस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट. क्रिएट द न्यू डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ दिस डिक्शनरी एंड पास दिस सेल्स को आप इसमें पास कर दीजिए. इसका जो भी डेटा है उसकी हेल्प से एक नया डेटा फ्रेम 2 जो है DF2 नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा. और रन करवा लीजिए इस कोड को और DF2 को प्रिंट करवा के देख लीजिए. डिस सेल्स को प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं डिक्शनरी की वैल्यूज़ में और what is the difference between the value which is shown in the form of dictionaries you can see. and
let's try to print df2 and you can see these data will be displayed as a 2D structure, two-dimensional structure in the form of row and column. These value will be set here, has been set here as a, and आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका आउटपुट शो हो रहा है. 2015, 16 एंड 17 यहाँ की वैल्यूज़ है डिसेल्स की, और एज अ वैल्यू जो ऑलरेडी क्रिएटेड डिक्शनरीज थी हमारी, उनकी वैल्यूज़ एज अ वैल्यू सेट हो चुकी हैं. नाउ प्रिंट द df2 ऑब्जेक्ट. df2 को हमने यहाँ प्रिंट करवाया. नाउ यू कैन सी द आउटपुट. द आउटर इंडेक्स, outer dictionary key values will be set as a column for this, and inner dictionary keys यहाँ पे थी quantity 1, quantity 2 नेम से, will be has been set here as a row index. तो यही डिफरेंस है. Now we are going to discuss the third way in which with the help of 2D array we are going to create a data frame with the help of 2D array. तो इसके लिए एक 2D array create करते हैं numpy मॉड्यूल को import करके. सबसे पहले हम एक यहाँ array create कर लेते हैं, एन array 1 ले लेते हैं. चलिए नाम, तो इट इज़ योर चॉइस कि आप array ऑब्जेक्ट का नेम क्या रखना चाहते हैं. मैंने यहाँ एन array लिया है. जस्ट लाइक दिस यू कैन सी. तो इस तरीके से एरे हमने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ एरे फंक्शन. एन एरे 1 यहाँ पे एक एरे का ऑब्जेक्ट का नेम है. एनपी यानी कि नमपाई लाइब्रेरी का लाइसेंस नेम है एनपी. उसकी हेल्प से हमने एरे फंक्शन कॉल करके 2 रोज़ और 3 कॉलम्स के लिए वैल्यूज़ यहाँ सेट करी है. तो एरे जो है इसी तरीके से असाइन किया जाता है. तो यहाँ सब एरर दे रहा है बिकॉज एन पी इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज हमने numpy मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया. तो लेट्स इंपोर्ट दिस numpy मॉड्यूल लाइक दिस. अलाइज दिस numpy मॉड्यूल एज एन पी एंड इंटीजर 32 यहाँ पे डेटा टाइप है अपने एलिमेंट्स का. तो ये भी एन पी में डिफाइन होता है, numpy में डिफाइन है, numpy में. तो एन पी डॉट करके हम इसे यहाँ कॉल करेंगे और रन करवाइए कोड को. देयर इज़ नो एरर. नाउ you can see your array like this. आप अपने array elements को प्रिंट करवा लीजिए. या शेप देखना चाहते हो तो शेप एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो. शेप जो एट्रीब्यूट है array का. नाउ यू कैन सी 2/3 यहाँ पे 2 रोज़ और 3 कॉलम्स का array था, तो 2/3 आउटपुट आ रहा है. इसी तरीके से आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं. df3 हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है डेटा फ्रेम का, बिकॉज df1 और df2 हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं. तो df3 ले लीजिए कुछ, इट्स योर चॉइस. एंड pd.dataFrame हमने फंक्शन कॉल किया pandas लाइब्रेरी का, एंड असाइन द एरे नेम टू दिस फंक्शन एज एन पैरामीटर, एज एन आर्ग्यूमेंट टू क्रिएट डेटा फ्रेम object with the help of these 2D array elements, and print this 2D this data frame just like this. And you can see the array element will be set as a data frame. In this data frame you can see the default index value be set हो गई, and default column value will be has been set here is from 0 to n-1 element. तो 0 और 1 यहाँ पे इंडेक्स है रो के लिए, एंड 0, 2, 0, 1 एंड 2 जो हैडर में डिस्प्ले हो रहे हैं वो अपने डिफ़ॉल्ट कॉलम्स जनरेट हो के आए. नाउ इफ़ यू वांट टू सेट द कॉलम नेम फॉर दिस, अगर आपको कॉलम हेडिंग सेट करनी है तो यू कैन ऑल्सो सेट विद द हेल्प ऑफ कॉलम पैरामीटर. आप कॉलम पैरामीटर का यूज़ करके कॉलम्स की हेडिंग भी सेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस. सेम फंक्शन डेटा फ्रेम फंक्शन में आपको कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ करना है, एंड यू कैन असाइन द न्यू कॉलम नेम, कॉलम हेडिंग फॉर दिस, जस्ट लाइक दिस. 1, 2 और 3, तो 0, 1 और 2 जो न्यूमेरिक नंबर्स में हेडिंग. तो अब आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 जो हमारी कॉलम्स हेडिंग्स हैं वो डिस्प्ले सेट हो चुकी हैं. तो इस तरीके से आप कॉलम हेडिंग्स चेंज कर सकते हैं. मान लीजिए आपको नए डेटा फ्रेम की कॉलम हेडिंग्स डिफाइन करनी है, यू कैन सेट विद द हेल्प ऑफ कॉलम्स. एंड इस तरीके से डेटा एनालाइज करना बहुत ही ईजी रहता है. ओके, नाउ you can also set the index value for your rows like this with the help of index parameter. इंडेक्स सेट करना, इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ कीजिए और इंडेक्स असाइन कर दीजिए. इंडेक्स वैल्यूज इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इन योर डेटा फ्रेम, एंड आप इंडेक्स वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं. तो
लेंथ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। लेंथ यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम एज द नंबर ऑफ़ रोज़। तो यहाँ देख सकते हैं डेटा फ्रेम में हमारी 2 रोज़ हैं, तो देयर इज़ एरर है ना, यहाँ पे एरर दे रहा था। तो ए और बी 2 लेबल्स हमने इंडेक्स लेबल सेट कर दिए, और यू कैन सी द आउटपुट दैट इंडेक्स लेबलिंग विल बी चेंज फ्रॉम 0 to 1 फ्रॉम टू ए एंड बी अल्फ़ाबेट्स में हमारा यहाँ जो इंडेक्स लेबल है वो चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। वन मोर एक एरे क्रिएट किया है, एरे 3, जिसमें कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इफ़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ईच रो इज़ नॉट सेम, अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है आपके वो सेम नहीं हो, लेंथ ऑफ जो रोज़ हैं वो आपके आपस में सेम नहीं हो। जैसे सपोज़ फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 सेकेंड रो में 2 एलिमेंट्स हैं, तो लेंथ सेम ना होने की वजह से जो आउटपुट आता है वो सिंगल कॉलम में डिस्प्ले हो जाता है। तो पाइथन क्या करता है, डिस्प्ले ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ ऑल रोज ऑफ योर एरे इन अ सिंगल कॉलम में वो डिस्प्ले करेगा, बिकॉज कॉलम्स की जो लेंथ है वो सेम नहीं रहती है। देर आर 3 रोज, वी आर गोइंग टेकिंग 3 रोज इन दिस एरे, 3 रोज हम ले रहे हैं, बट आप देखेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। फर्स्ट जो रो है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, 101.5 एंड 201.5। सेकेंड रो के अंदर 400, 550 एंड 600 एंड 700 4 एलिमेंट्स हैं। एज अ कॉलम उसमें 4 एलिमेंट्स हो गए, और थर्ड जो रो है उसमें है अपने 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं हम, ठीक है। तो यू कैन सी द after this, when you create a data frame with the help of these kinds of array object, then your data frame value will be displayed in a single column. यहाँ एरर आ रही है बिकॉज यहाँ पे जो है जो स्क्वायर ब्रैकेट है होल एलिमेंट को, तो आपको इस तरीके से ब्रैकेट्स वगैरह भी मैच कर लेने हैं। अब एरे को प्रिंट करवा के देखते हैं हमारा। सो यू कैन सी द लिस्ट ऑफ एरे एलिमेंट्स विल बी डिस्प्लेड, एंड डी टाइप जो डेटा टाइप है एरे एलिमेंट का वो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट टाइप, आप देख सकते हैं। नाउ ट्राई टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ दीज एरे ऑब्जेक्ट। नाउ पास दिस एरे ऑब्जेक्ट टू अ डेटा फ्रेम, हमने pd.dataFrame कॉल करके एरे को इसमें असाइन करवा दिया फंक्शन में। दैन ट्राई टू प्रिंट दिस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट df3, तो इस तरह का आउटपुट आया। नाउ यू कैन सी ओनली सिंगल कॉलम विल बी हैज़ बीन डिस्प्लेड हेयर, एंड और रोज़ जो है हमारी वो डिफरेंट है बट कॉलम सिंगल है, बिकॉज नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ईच रो इज़ नॉट सेम। Number of element in each row are not same, so that all the element will be displayed in a single column. Now we are going to discuss about the third way, जिसमें कि हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो हमारा लास्ट वे है सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सीरीज़ की लिस्ट अलग अलग क्रिएट करनी होगी। जैसा कि हम इस डेटा फ्रेम में 3 कॉलम्स अपने लेने जा रहे हैं, पॉपुलेशन, एवरेज इनकम, और हम लेंगे कैपिटल इनकम। अलग अलग सिटीज़ की पॉपुलेशन ले लेते हैं, उनकी एवरेज इनकम, और थर्ड ले लेंगे हम कैपिटल इनकम। तो किस तरीके से ये वर्क करता है आप देखिए कि पॉपुलेशन में हमने एक सीरीज़ की लिस्ट ले ली है, तो pandas लाइब्रेरी का सीरीज़ फंक्शन हमने यहाँ कॉल किया टू डिफाइन द सीरीज़। एंड सीरीज़ क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। सीरीज़ जो है 1 डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करता है। 1 डायमेंशनल एरे मीन्स होमोजीनियस एलिमेंट्स का सेट, यानी कि सेम टाइप ऑफ डेटा। तो आप देख सकते हैं कि जो डेटा है लिस्ट के अंदर सेम टाइप का है। न्यूमेरिक वैल्यू हम यहाँ पास कर रहे हैं, उससे एक लिस्ट जो एक 1D एरे है वो क्रिएट हो गया है। इंडेक्स वैल्यू हमने सेट कर दी है, डिफरेंट सिटीज़ के नेम से इंडेक्स की लेबलिंग हम सेट कर दिए। और नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट 1 मोर फील्ड, एवरेज इनकम, इन द सेम मैनर। एंड इसके लिए भी आप सेम इंडेक्स वैल्यू सेट कर दीजिए एवरेज इनकम के लिए भी। और थर्ड फील्ड हम ले रहे हैं यहाँ पे पर्स कैपिटल नाम से, यही इंडेक्स वैल्यू सेम दूसरी जो सीरीज़ है उसके लिए भी हम इस तरीके से सेट कर देते हैं। ओके, अब देखिएगा इन्हीं सीरीज़ का यूज़ करके किस तरीके से एक डेटा फ्रेम क्रिएट होता है। तो इस तरह की अगर कोई एरर आती है तो यू
हैव टू ट्राई चेक योर कोड अगेन एंड सभी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, वो सभी चेक कर लीजिए, क्योंकि एरर देता है बिकॉज नंबर ऑफ़ एलिमेंट मस्ट रिमेन सेम इन ऑल ईच एंड एवरी फील्ड। एंड नेक्स्ट हम फील्ड ले रहे हैं पर कैपिटल नाम से। उसमें पर कैपिटल हम ले लेते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम का यूज़ करके हम न्यू कॉलम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एंड द वैल्यू ऑफ दीज विल बी स्टोर्ड इन अ कॉलम पर कैपिटल। इसके बाद हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं, डिक्शनरी एक क्रिएट कर रहे हैं। उसमें ये तीनों जो कॉलम्स हैं अपन साइन करवा देते हैं। इंडेक्स हमने सेट, यहाँ पे कॉलम की हेडिंग हमने सेट की कि 0 जो है पॉपुलेशन वैल्यूज़ को लेगा, 1 कॉलम हेडिंग जिसकी 1 डिस्प्ले होगी वो एवरेज इनकम वाले फील्ड की वैल्यू को स्टोर करेगा, और जिसकी सेकंड यानी कि 2 नाम से हेडिंग डिस्प्ले होगी कॉलम की, वो पर कैपिटल की जो है आपके वैल्यू को स्टोर करेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी वैल्यू स्टोर होती है डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं df4। Now call the data frame function to create a data frame with the help of these dictionary 2, which is contain the series type values. Now print this data frame object. वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया बिकॉज जितने भी वे है all the types of all the ways which are used to create a data frame have been discussed in this single video. तो आप देख सकते हैं 0 1 2 यहाँ पे कॉलम हेडिंग आपके डिस्प्ले हो, और ये जो हमारा डेटा फ्रेम है वो क्रिएट हो गया इस तरीके से। तो सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर यानी कि सीरीज़ का यूज़ करके आप किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, ये आपने देखा। अलग अलग सीरीज़ हमने क्रिएट की और उसकी वैल्यूज़ एक डिक्शनरी में क्रिएट असाइन करवाई, और उसी डिक्शनरी वैल्यूज़ को हमने क्या किया, नाउ अब हमने एक सिंगल डेटा फ्रेम लिया है जिसमें कि हम क्या करेंगे, जितने भी अपने एट्रीब्यूट होते हैं डेटा फ्रेम फंक्शन के हाउ कैन यू चेक द इंडेक्स वैल्यू, कॉलम वैल्यूज ऑफ दिस डेटा फ्रेम, इफ़ यू वांट टू चेक द वैल्यूज़ इन अ नंपाई एरे फॉर्म, इफ़ यू वांट टू चेक द इंडेक्स वैल्यू फॉर दिस, देन आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो एक डेटा फ्रेम हमने लिया है, स्टूडेंट मार्क्स और स्पोर्ट्स इसमें फील्ड है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू वांट टू चेक द इंडेक्स वैल्यू, प्रिंट करवाना है आपको इंडेक्स वैल्यू को, तो सिंपली डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के नेम के साथ में आपको क्या करना है, इंडेक्स पैरामीटर कॉल कर लेना है, इंडेक्स एट्रीब्यूट कॉल कर लेना है। df डॉट इंडेक्स लिखने पे आपका जो इंडेक्स वैल्यू है वो जनरेट हो जाएगा। तो ऑल दी वैल्यूज़ विल बी सेट हैज़ बीन सेट हियर एज अ इंडेक्स, तो वो यहाँ डिस्प्ले होगी। स्टार्टिंग है इंडेक्स की 0 से, स्टार्ट इज इक्वल्स टू 0, स्टॉप इज इक्वल्स टू 5 एंड स्टेप इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि 1 स्टेप स्किप हो रहा है। तो कॉलम्स भी वैल्यू डिस्प्ले करवानी, तो df डॉट कॉलम्स कर लीजिए, तो सारे कॉलम्स के नेम आपके डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी तरीके से आपको डायमेंशन चेक करना है या डेटा टाइप्स चेक करने हैं, तो डी टाइप्स लिख लीजिए। डी टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ करके आप यू कैन चेक द डेटा टाइप ऑफ ईच एंड एवरी कॉलम इन योर डेटा फ्रेम। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट टाइप का है, मार्क्स जो है फ्लोट टाइप की वैल्यू ले रहा है, स्पोर्ट्स जो है हमने ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू ले रहा है। तो इस तरीके से ये सारे एट्रीब्यूट्स आपके वर्क करते हैं। शेप से आप यहाँ पे आपके एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 रोज़ और 3 कॉलम्स की फॉर्म में आपका डेटा फ्रेम है, तो उसकी शेप आ गई 5/3। 15 एलिमेंट्स यहाँ स्टोर हो रहे हैं, तो 5 रोज़ और 3 कॉलम्स डिस्प्ले हो रहा है एज अ शेप। और इसी तरीके से एम्प्टी है, वेदर यू वांट टू चेक द वेदर इज़ डेटा फ्रेम इज़ एम्प्टी और नॉट, तो आप एम्प्टी चेक कर लीजिए। वैल्यूज़ यानी कि नंपाई की फॉर्म में आपको वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है एरे की फॉर्म में, तो वैल्यूज़ एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। और यू कैन सी द वैल्यू विल बी डिस्प्ले एज द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ array form. And if you want to check whether your data frame is empty or not, and you can also check with the help of empty attribute, it will return the boolean value true or false. False it means this data frame contains some data, or if this return true then your data frame is empty. तो n dimensional n dim से आप चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा फ्रेम का डायमेंशन क्या है। तो 2D डायमेंशन है बिकॉज 2D फॉर्म में ये डेटा है, रो और कॉलम की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे जो है आपके आउटपुट आ रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको यू वांट टू परफॉर्म अ ट्रांसपोज ऑपरेशन फॉर योर डेटा फ्रेम, तो एक नया डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए df न्यू नाम से, ठीक है।
कोई भी आप एक नया डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट ले लीजिए इस तरीके से, जैसा कि एज यू कैन सी आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट टू स्टोर द ट्रांसपोज वैल्यूज़ ऑफ माई डेटा फ्रेम। जो मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड DF ऑब्जेक्ट है उससे हम एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि ट्रांसपोज मीन्स जो इंडेक्स वैल्यू एंड जो कॉलम वैल्यूज़ आपकी हैं वो आपस में स्वैप्ट हो जाएंगी। तो रोज़ जो है वो कॉलम बन जाएंगे और कॉलम्स आपकी एज अ रो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो किस तरीके से होता है ये, आपको सिंपली df.t लिखना है, यानी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ में कैपिटल लेटर T यूज़ करना है टू ट्रांसपोज योर डेटा फ्रेम। नाउ यू कैन सी दैट न्यू जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है उसमें आपकी रोज़ और कॉलम इंडेक्सेस जो थी आपकी स्वैप्ट होगी। तो जो रो एज अ रो आपके कॉलम्स स्टूडेंट मार्क्स और स्पोर्ट्स जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में एज अ कॉलम डिस्प्ले हो रहे थे, नाउ ऑल दीज कॉलम्स आर डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड ऑल दी रोज़ जो रो इंडेक्सेस थी 0 to n-1 आप देख रहे हो 0 1 4 जो रोज़ थी वो आपकी एज अ कॉलम डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, रोज़ और कॉलम हेडिंग्स जो आपस में इंटरचेंज हो जाती है, स्वैप्ड आउट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांसपोज। इसी तरीके से कोई कॉलम्स आपको पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम को देखना है, आई वांट टू सी ओनली द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट कॉलम, देन डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के नेम के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट में आप उस कॉलम का नेम पास कर दीजिए एंड यू कैन सी द वैल्यूज़ फॉर दैट कॉलम। मल्टीपल कॉलम्स लेने तो आप मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू भी देख सकते हैं। तो रो और कॉलम के ऑपरेशन हम अगले वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।